students. Today we will study about the Surat split. Partition of Bengal impacted the scenario of Indian politics very deeply. The moderate leaders of Congress was against taking any hard stand against the government. They wanted this movement to be limited up to the Bengal, whereas aggressive leaders made up their mind to protest against the government. With this kind of dichotomy, of thinking, two conventions of Banaras 1905 and Kolkata 1906 were held. The convention of 1907 was to be held in Nagpur, which was later on changed to Surat. By this time, the aggressive movements and thinking had intensified within Congress. The aggressive nationalists wanted Lala Lajpat Rai to be made their leader, but the moderate made Ras Behari Bose as their leader. The convention was suspended on the first day. On the second day, Bal Gangadhar Tilak proposed that if Swaraj, boycott, and national education are accepted on agenda, then the issues of president candidature will be brought to an end. But moderates refused it, and the rift between moderates and extremists became so wide that aggressive nationalists were ousted from the Congress. And after the incident of Surat, the moderates and extremist nationalists were forced to think of a common agenda, but many leaders did not agree upon concluding the differences, and finally there was a divide in Congress. This divide in Congress is known as Surat split. So students, क्या हुआ कि जब मॉडरेट्स थे और एग्रेसिव लीडर थे, दो लीडर थे, उनके अपने अलग अलग व्यूज़ थे। मॉडरेट्स चाहते थे कि अपील और मेमोरेंडम है यही देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाए। वहीं एग्रेसिव लीडर चाहते थे कि हम अपने अधिकारों को अब छीन कर लें। और इसी तनातनी के चलते दो बैठकें हुई। पहली बैठक जो हुई वो बनारस में हुई 1905 में, और दूसरी बैठक जो हुई वो कोलकाता में हुई 1906 में। और इसके बाद 1907 में नागपुर में जो कन्वेंशन होने वाला था वह चेंज होकर सूरत में आ गया। यहाँ पर एग्रेसिव लीडर्स और मॉडरेट्स के बीच में विचारों को लेकर तनातनी हुई। इसके बाद लोकमान्य तिलक जी ने यह प्रोपेगेंडा रखा कि स्वराज, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन को, इस एजेंडा को एक्सेप्ट कर लिया जाए, जिसे कि मॉडरेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। और इसके बाद जो कांग्रेस थी वो बट गई। अब कांग्रेस का जो बंटवारा इस कन्वेंशन में हुआ, यह ही सूरत स्प्लिट कहलाता है। और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इसे अपनी विजय माना, लेकिन बाद में जो थी यह एक नया अध्याय लेकर के आया। एंड दिस मूवमेंट वाज सून गोइंग टू टेक द प्रोपोर्शन ऑफ अ मैसिव मूवमेंट। The Gandhian era. The national movement after the First World War became a widespread anti-colonial movement. The evolution had many stages. This was the time when Mohandas Karamchand Gandhi came into limelight and became the national leader with very wide acceptance. अब जो था ये बहुत सारा चेंजेस हुआ समाज में, और जो नेशनल मूवमेंट था अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया। और जो गांधी जी थे वो बहुत भी लाइमलाइट में आए, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा उन्हें लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया गया। गांधी जी लेड अ वेरी सिंपल लाइफ. Gandhi ji made social reform an integral part of nationalist movement against the custom of untouchability, and Gandhi ji also the methodology which he employed to struggle against the British rule is called satyagraha. Also his another contribution is in the field of cottage industries. तो गांधी जी जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसी
लोगों को सत्याग्रह है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, स्टैंड है, कॉटेज इंडस्ट्री है, इन सब चीज़ों में उन्होंने बहुत हेल्प की और लोगों को चरखा का एक उन्होंने ऑप्शन दिया कि इससे जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी स्टार्ट किया। Gandhiji sacrificed his life for the unity of Hindus and Muslims. The First World War ended in 1918. Turkey was defeated in the war. The victorious nations caused the breakdown of Turkish Empire. This infuriated the Muslim population and the discontent arose among Muslims against British government. So the British government resorted to the policy of suppression and introduced Rowlatt Act in 1919. The Rowlatt Act gave the right to the government to send an individual to jail without any judicial trial. गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम लोगों की एकता बनाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, तुर्की उसमें हार गया और जो बहुत तुर्की एम्पायर जब ब्रेक डाउन हो गया तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो भी उसके खिलाफ हो गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया। यह एक्ट यह कहता था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुडिशियल ट्रायल के जेल में डाला जा सकता है। अब रॉलेट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम मार्च 1919। देयर वर प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट द एक्ट। अब जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जो रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया तो पूरे देश में उसके खिलाफ में आंदोलन हो रहा था। ऑन 6 अप्रैल 1919 देयर वर स्ट्राइक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड वर्क वॉर was stalled. Punjab witnessed a strong protest. The government charged lathis and bullets at many places in Punjab. The two powerful leaders of Congress, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichli, were arrested and sentenced to jail. To protest against these arrests, there was a meeting on 13th April, the Baisakhi Day, in Jallianwala Bagh in Amritsar. This is a small garden surrounded with houses. General Dwyer entered from the only gate of the garden, surrounded it along with all his soldiers. Without giving any warning to the people, he ordered his soldiers to open fire. Children, women, and old people were also present there for the meeting. The firing lasted for 10 minutes and nobody could escape from there. After some time, Dyer left the place. According to the official statistics, about 100 people died there and more than 1200 people were injured. Many people jumped into the well situated in the Bagh. This inhuman and barbaric act infuriated the entire nation. Even many of the British people found this gruesome act and deliberate massacre soul stirring. अब जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जब पूरे देश में आंदोलन होने लगे, 6 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भी मीटिंग होने वाली थी और वहाँ पर लोग 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, वहाँ पर लोग अमृतसर में इकट्ठे हुए और वह चारों तरफ से बंद गार्डन था और सिर्फ एक ही गेट था उसमें एंटर होने का। तो जब ये मीटिंग सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली के जो कांग्रेस के लीडर थे उनके अंडर में होनी थी, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद भी जब वो मीटिंग हुई तो जो जनरल डॉयर था वो वहाँ पर एंटर हुआ और 10 मिनट तक उसने बस बिना वार्निंग दिए अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और इसमें बच्चे, वीमेन, किसी ओल्ड पीपल किसी को भी नहीं बख्शा गया और लगभग 10 मिनट की फायरिंग में यह निर्मम हत्याकांड किया गया। इसमें लगभग 1200 पीपल जो थे वो घायल हुए और 100 पीपल जो उस वक्त तेरा यहाँ इसकी निंदा ब्रिटिशर्स ने भी की और यह जो इसका जो हत्याकांड था इसने एक बहुत ही मैसिव मूवमेंट अब ले लिया और इसमें द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया बहुत बड़े पैमाने पर, जो कि जनरल डायर के खिलाफ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। Congress adopted a new program of non-cooperation in 1920.
under the leadership of Gandhiji. Protest against Jallianwala Bagh massacre, a Rowlatt Act, breach of promise from British government, and achieving Swaraj were the main objective of the non-corporation movement. This movement was to be run in many stages. In the initial stage, the title conferred by the British government were to be returned. In the next stage, legislative council, courts and educational institutions were to be boycotted. अब 1920 में जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसके खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया गया, रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और गवर्नमेंट से स्वराज के लिए मांग की गई और यह इसको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का नाम दिया गया। अब इसको कई स्टेजेस पर इसे चलाया गया। फर्स्ट स्टेज में जो था, इनिशियल स्टेज थी, वह ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह ये रॉलेट एक्ट को वापस ले और इसके बाद फिर सेकंड जो था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट्स हैं, ये इन सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सारी चीज़ों का बॉयकॉट किया जाएगा। अब इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप गांधी जी चल रहे थे, लेकिन उसी बीच 1922 में चौरा चौरी का हत्याकांड हो गया उत्तर प्रदेश में, जो कि हिंदुस्तानियों ने पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिसमैन थे उनको इसका बदला लेने के लिए, जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए उन्होंने उन पर गोलियां दागी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। और गांधी जी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे तो उन्हें इस मूवमेंट से बहुत दुख हुआ और उन्होंने सस्पेंड कर दिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। अब द इम्प्रिजन्ड लीडर वर अनहैप्पी विद द न्यूज़ ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट फॉर 6 year imprisonment बट वॉज रिलीज्ड आफ्टर 2 years। अब जो इम्प्रिजनमेंट के जो लीडर्स थे, इम्प्रिजन थे, जो वो बहुत अनहैप्पी हो गए, बहुत नाखुश हो गए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को जब सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ तक कि गांधी जी खुद भी 6 साल के लिए उन्हें भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर वो 2 साल के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। नाउ साइमन कमीशन। According to the Government of India Act 1919, there was going to be reconsideration on the issue of any constitutional changes in next 10 years. In November 1927, British government appointed a commission to review the working of Act and to bring about reform if required. This commission had no representation of Indians. Whatever the terms of references for Indians had no hope to find Swaraj through it. The Simon Commission reached India in February 1928. A nation-wide strike was awaiting it. Even most of the members of Central Assembly boycotted it. There were committees formed all over the country to protest against the Simon Commission and strikes and demonstrations. The demonstrators shouted the slogan "Simon go back." The police lathi charged the silent and peaceful protesters. Lala Lajpat Rai led the protest in Punjab. As a result of lathi charge, Lala Lajpat Rai was injured and succumbed in death. Finally, Simon Commission had to go back. अब 1919 में भारत सरकार कुछ उन्होंने अधिनियम बना रखे थे, तो उसके अनुसार अगले नेक्स्ट 10 years के लिए कुछ संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाना था। अब 1927 में उन्होंने क्या हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, गवर्नमेंट ने इन पर विचार करने के लिए एक कमीशन का गठन किया और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था और आयोग ने जिन बातों पर विचार करने को कहा उससे भारतीय जनता को स्वराज पा सकने की जरा भी आशा नहीं थी कि इससे स्वराज मिलेगा। इसलिए 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया, पूरे देश में उसका बहिष्कार किया गया और उन्होंने नारा दिया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पंजाब में विरोध कर रही लाला लाजपत राय जी के सर पर लाठी पड़ी और घायल हो गए, वो बाद में उनका देहांत हो गया। बाद में साइमन कमीशन वापस चला गया। सिविल
disobedience movement. अब civil disobedient movements we will read about it in the next video.